Let's give a clap for the choir. Let's clap for the worship. Thank you. कभी कभी अपने लिए भी ताड़ी बजानी चाहिए जोर से, है ना? Praise God. कभी कभी अपने आप को भी appreciate करना चाहिए. Very good. Hallelujah. Let's read from the Psalms today. आज के ज़बूर से हम पढ़ेंगे. आज का जो ज़बूर है हमारे लिए 72 नंबर ज़बूर. जल्दी से हम as we used to read the same way we're gonna read. हम सभी मिलके इस पवित्र कलाम को, पवित्र वचन को, पवित्र ज़बूर को, प्रभु के थोड़े को इकट्ठे मिलके पढ़ेंगे. As we let's start right now. Endure the king with justice, O God, the royal son with your righteousness. May he judge your people in righteousness, your afflicted ones with justice. May the mountains bring prosperity to the people, the hill the fruit of righteousness. May he defend the afflicted among the people and save the children needy. May he crush the oppressor. May he endure as long as the sun, as long as the moon through all generation. May he be like rain falling on a mount field, like showers watering the earth. In his days may the righteous flourish and prosperity abound till the moon is no more. May he rule from sea to sea and from the river to the ends of the earth. May the desert tribes bow before him and his enemies lick the dust. May the king of Tarshish and of distant shores bring tribute to him. May the kings of Sheba and Seba present him gifts. May all kings bow down to him and all nations serve him. For he will deliver the needy who cry out, the afflicted who have no one to help. He will take pity on the weak and needy and save the needy from the death. He will rescue them from the oppression and violence, for precious is the blood in his sight. Long may he live. May gold from Sheba be given him. May people ever pray for him and bless him all day. May grain abound throughout the land. On the tops of the hills may it sway. May the crops flourish like Lebanon and thrive like the grass of the field. May his name endure forever. May it continue as long as the sun. Then all nations will be blessed through him, and they will call him blessed. Praise be to the Lord God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds. Praise be to his glorious name forever. May the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. This concludes the prayers of David, son of Jesse. Thank you. Hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे. Thank you, God, for the wonderful word that you've given, God. This is the time that as we come close to you, पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में, तेरे पवित्र presence में जब हम आपके पास आते हैं, पिता परमेश्वर, इस ज़बूर के जरिए पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों के साथ बातचीत करें. पिता परमेश्वर, ये ज़बूर हमारे रोगों को पिता परमेश्वर और पवित्र कर सके और क्लियर कर सके और इस तरीके से प्रभु जी हमें पाक कर सके कि प्रभु जी तेरी हजूरी के में हम जुड़ सकें. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी आपका वेलकम करते हैं. पिता परमेश्वर, जितना समय प्रभु आपकी हजूरी आपके पवित्र कलाम से सुने, समझे, सीखे, पिता परमेश्वर ये 7 गुना 100 गुना फल लेके आए, किसी भी चीज की कमी ना हो. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen and amen. Thank you, church. Today आज इस church में जब हम आते हैं, when we come to the presence of God, there's a one thing that God wants to teach us. There's a one thing that God wants to tell us. It's about the rule. Rule करना और rule पे चलना, how is very important in our life. प्रभु के वचन में लिखा है, ये सुलेमान, किंग सोलोमन और किंग डेविड आपस में मिलके इन्होंने प्रार्थना की है. ये आपस में प्रार्थना कर रहे हैं, आपस में परमेश्वर की जहन में आके, प्रभु के साथ में आके, उसकी प्रेजेंस में आके वो प्रार्थना कर रहे हैं. This is a very important part that I want to tell you regarding about the rule of God. परमेश्वर के नाम से वो, और जब उसकी जहन में, उसकी बातों में जब हम पहुंचते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम पर रूल कैसे कर सकता है, परमेश्वर की बातें हम पे रूल कैसे कर सकती हैं. दिस इज समथिंग हम अपने को समझना है कि हमें प्रभु को अपनी जिंदगी पे रूल करवाना है. And this will only happen when we say, God, you rule on my desires. God, you rule on my thoughts. You rule on my ways.
You rule on my each and every efforts I do in my life. प्रभु जी तू अपना सारा अपना हुकूमत प्रभु जी मेरे पे कर. तेरी हुकूमत मेरे जीवन में चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है. This is something is 8 words say, may he rule from sea to sea and from the river to the ends of the earth. उसकी हुकूमत ये जितनी भी संसार के कोने कोने की शोर तक, जितनी भी जहां तक आपकी निगाह जाती है वहां तक उसका रूल, उसकी हुकूमत चलती है. अगर उसकी हुकूमत इस दुनिया के हर एक कोने कोने पे चलती है, हर एक इंसान पे चलती है, हर एक नबी पे है, हर एक सेवक पे है, हर एक चुनी हुई कलीसिया पे है, तो आपकी निजी जीवन में उसका रूल, उसका हुकूमत होना बहुत ज्यादा जरूरी है. That's something that we have to pray today. That's something that King Solomon prayed. That's something that King David prayed. That's something they just opened their mouth and said, God, let your will rule on my desires. You know, this is something जब हम ये जब सोचते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु जी तेरा हुकूमत मेरे जीवन में चले, हमारा माइंड अलर्ट होता है हमेशा, पर जो सी अंदर की आत्मा होती है, अपना दिल होता है, वो हम अपने हाथ में रखा होता है कि हुकूमत हमने अपनी ही चलानी है. राइट? समझा जाता है दिमाग से, पर उसको रिसीव नहीं होता है. जब तक दिल की जमीन पे वो रिसीव नहीं होगा, वो कोई फल पैदा नहीं करता. जौन सा बीज, जौन सा सीड आपकी दिल की जमीन पे बोया जाता है, उसमें से फल होने बहुत ज्यादा जरूरी है. उसमें से हर चीज उगनी बहुत ज्यादा जरूरी है. वो ग्रो इसलिए नहीं करती बिकॉज आवर माइंड इज अलर्ट बट वी डोंट रिसीव हिज विल इन आवर लाइफ. यू नो, हम कभी कहते हैं कि गॉड तू कहता है हो जाए. हम कहते हैं प्रभु जी तेरी, है ना, क्या कहते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो. मर्जी पूरी ऐसे नहीं होती है. मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान एक माउंटेन पे चढ़ रहा था. वो माउंटेन की पीक, पहाड़ की पीक पे चढ़ गया. माउंटेन की पीक पे जब चढ़ा, उसका पैर स्लिप हो गया. जब उसका पैर स्लिप हुआ तो वो गिरते गिरते एक पेड़ पे आके गिर गया और उसने पेड़ की एक ब्रांच को पकड़ लिया. जब ब्रांच को उसने पकड़ लिया तो वो चीखने लग पड़ा, हे गॉड प्लीज सेव मी. प्रभु जी तू मुझे बचा, अगर तू परमेश्वर है तो मुझे बचा सकता है. 10 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई. 15 मिनट, 5 मिनट उसने और जोर से बोला, हे गॉड प्लीज सेव मी अगेन. है ना? तो कभी हमारे साथ भी होता है, जब आवाज नहीं आती हरी ऊंची जरा बोलते हैं ना, सोचता लो सोचता. राइट? That's why he said, God please help me, I'm about to die, मैं मरने वाला हूं. ऊपर से आकाश खुला, वहां से आवाज आई, बेटा मैं तेरी मदद करने जा रहा हूं, अपने हाथ को छोड़, मैं तुझे पकड़ लूंगा. Is there any other voice? कहता और कोई है बचाने वाला? ये आवाज वाली ठीक नहीं है. कहता ये आवाज ठीक नहीं है, मैं किसी और को बोलता, Is there anyone who can help me now? Right? When we say let your will be done in our life, when we say let your kingdom come in our life, when we say God let your name be ruled in our life, then we don't have to think from our brains. हम बड़े सियाने हैं आपा, है ना? साड़ी अकल बहुत ज्यादा ऊंची है ना? हम अपनी समझ, अपनी समझदारी से बहुत सारा कार्य कर लेते हैं. तभी प्रभु के वचन में कहा, may he rule from sea to sea. अगर वो दुनिया की हर एक कोने कोने की शोर तक अपनी हुकूमत चला सकता है, परमेश्वर चाहता है कि आज उसकी हुकूमत आपकी जिंदगी में चले. अगर परमेश्वर कह रहा है कि आप उसकी हुकूमत को अपने जीवन में लेना, तो वो कहता है तो मान लो. तो हमारा दिमाग चलता है कि नहीं यार, इतना हो तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर हमने नहीं किया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तभी हमारा माइंड होता है अपने हाथ में है ना, अलर्ट होता है, सुनते हैं सब कुछ है, पर हमारी रिसीविंग पावर इज वेरी लो. It's very hard to receive when God says move to left, then our brain say let me see what's in the right. एक बच्चे को बोलो भैया गिफ्ट नहीं खोलना, पर उसी गिफ्ट पे उसका ध्यान होगा. ये मना किया है, इसको मैं खोल के देखूं इसमें क्या है ना? होता है ऐसा ही हमारे साथ. हमें बोलते हैं कि ये बेटा ये काम नहीं करना है, हम वो काम ज्यादा जोर से करते हैं कि वो मना किया हुआ है, वो क्या है उसमें. आदम और हवा ने पाप क्यों किया? बिकॉज उसको बोला था कि ये काम नहीं करना, ये फल से नहीं खाना. यू नो द हार्ट स्टार्ट पुशिंग देम सो मच कि है ना कि यार मना कीता है, पता नहीं हो जाए कोई होरी कुछ वधिया चीज ना होवे. राइट? हमें उस चीज की तरफ हमारा माइंड लेके जाता है. अगर हम कहते हैं प्रभु की हजूरी को मानना है, हजूरी में आना है, तो माइंड करेगा ये नहीं करना है. तभी तक हम, जब तक उसका रूल, उसकी हुकूमत, उसकी मर्जी, उसकी पावर, उसकी समर्थ हमारे जीवन में नहीं हो सकती, तब तक वो राजा नहीं बन सका था.
That's why it says that, may the desert tribes bow before him and his enemy lick the dust. When you say, let your will rule in my life. आपकी हर एक मुश्किल, मुसीबत, परेशानी, आपका डिले होना, आपके जीवन में बरकत नहीं आनी, आपके जीवन में आंसर्स नहीं आने, एक बार याद रखें, आप परमेश्वर को रूल नहीं करने दे रहे हैं. जब तक आप परमेश्वर को रूल नहीं करने देंगे, कभी भी जाति जाति के लोग आपको जान नहीं सकेंगे, जाति जाति के लोग आपके परमेश्वर को जान नहीं सकेंगे, जाति जाति के लोग आपके परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकेंगे, जाति जाति के लोग आज भी आप पर सवाल करेंगे, कितने साल से मसीह बने हुए अभी तक कुछ नहीं पाया आपने. You know, because we are not allowing the God's rule to come in our lives so that we can live according to his rule. You know, this is very important. जब मैं जब ज़बूर पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने एक बात की कहते कि it's not only about the rule, it's about that acceptance. When you accept it. अब याद रखें कि जब आपने यीशु को अपने जीवन में अपनाया था, उस वक्त तो हम कहते थे, प्रभु जी अब ये जीवन तेरा है.